So good morning, everyone. Good morning. Thank you for joining the webinar today on estate planning. I'll just start by giving a brief introduction about our firm for those who do not know. Fin Chikitsak is our brand. My mom is a doctor and my father is into finance, so that's how we coined the name Fin Chikitsak. Uh, my father founded this firm about 10 years back. He's an alumni of IIM Ahmedabad and BITS Pilani and has extensive experience in the equity markets. Myself, I'm an alumni of NIT Surat and MDI Gurgaon, and I've been working with multinational banks before I joined my father on a full-time basis. The products and services that we offer include almost we try to cover all aspects as far as financial planning is concerned, which estate planning is also a very important topic. Mutual funds, insurance, loans, tax advisory, alternates. These are all products that help you to create your wealth. And finally, we have estate planning, which basically covers of how this wealth should be transferred from one generation to the next. And again, this is, I think, one of the most important topics as far as the financial planning is concerned, but I think it's also one of the most ignored ones. So, without much ado, I'll introduce our speaker today, Deepak sir. So, Deepak sir, he is a co-founder and director of AAFM India. AAFM stands for American Association of F- Financial Managers. He is a founder and director of Next Gen Estate Planning Solutions. It's an firm that really helps each and every one of us to plan estate planning when it comes to wills, to trusts, and all, and each and everything. He's the founder director of Financial Literacy Advisory Board of India. If I talk about his qualifications, I think the screen will fall short. He's a doctorate in wealth management, a certified financial planner, financial trainer, estate planner. I've myself attended many sessions by Deepak sir, and it's always a good learning experience after the webinar. And we requested him, to come and speak in this webinar for our clients. And so it's an honor to have you, to be honest. Thank you so much for taking the time and coming for all of us. Thank you. So I'll pass on this, the control to you, sir. And we have got many questions. I will just request all the participants to, make use of this wonderful session. If you have any questions, please don't hesitate to ask us. We'll be more than happy to answer, your questions. Now that sir is here, I think all your questions will be answered. So please don't hesitate and ask your questions. So we have also received quite a few questions on our, when people have registered on Zoom. So what we'll do is, I think we'll take this questions at the end, and that's how we will take. Yes, perfect. Perfect. Okay, sir. So I've given the control to you. Would request you to take the session. So good morning, everyone, and thank you, Akshad. Thank you for inviting me. And Akshad always wanted to help his client plan this part of wealth management, which, as he told, is the most ignored but the most important part of wealth management. That is wealth transfer planning. So, whenever I start a session on estate planning, inheritance planning, I always ask a question. And I'll ask the same question to you. And the question is, if you die today, what would you leave behind for your family and children? An inheritance or a mess? Will your wealth be a source of joy for them or source of trouble? तो मैं हिंदी में से थोड़ा अच्छे तरीके से पूछता हूँ, आप अपनी मृत्यु के बाद अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ोगे या विपत्ति छोड़ोगे? Very simple question. All of us would like to leave an inheritance, wealth, joy for our children. But most of us leave what is called troubles because we have not planned our wealth transfer planning properly. Now, by the end of this session, you would know what to do for your wealth transfer planning, right? But that's the starting point. This session is not the end; it's just the starting point. I'll just sow the seeds of wealth transfer planning in your minds, right? That's the only objective of the session. Okay. So, as I told you, wealth management is basically when you do three things for your clients. So as a wealth manager, I help my clients do three things, and these are three things which you will also do for your wealth. First is you would like to enhance your wealth. Right? How do I enhance my wealth? How do I increase my wealth? How do I accumulate more wealth? Second is how would I preserve this wealth?
How do I safeguard this wealth? How do I ring fence this wealth? Third is, what happens to this wealth after me? How do I transfer it? How do I distribute it? How do I pass it on to the next generation? This session is all about wealth transfer planning. But I'll be failing in my duty if I do not make you aware of wealth protection planning. I'll just take 2 minutes to explain wealth protection planning or wealth safeguarding the wealth. Now, when I ask you, are you working on preserving your wealth, safeguarding your wealth? Most of you would say yes. And you will say, and I'll ask you how. So you will say, I have created a diversified portfolio, I have bought insurance, etc. But do you know wealth protection planning is something beyond insurance and diversified portfolio? There are some risks which are third party risks which can be transferred to a third party by paying premium. Right? These are insurable risks. Risk of dying early, risk of meeting an accident, risk of having an accident. You can pay premium and buy insurance for that. Then there are certain environmental risks. Stock market falling, war breaking out, economy going to recession, but for which you create those diversified portfolios, etc., etc. But there are certain risks which are neither insurable nor market related, right? But they can still jeopardize your wealth, harm your wealth. What have you done to protect those kinds of risks? Just like I just like to give you one small example just to make you aware of these types of risks. And believe me, these are not the only risks. The example is not the whole population. It's just the sample, right? So basically, let me give you an example. This happened with one of my clients. So I had a client in Delhi who had a net worth of more than 100 crore rupees. And he had only one son. What he did was he made a will in favor of his only son. And after making the will, within 2 3 years, he passed away. Post his passing away, his only son inherited this 100 plus crore rupee wealth because the will was successfully implemented. And everything looked fine for the next 8 months. But as soon as 8 months passed, the son's wife applied for a divorce. And as alimony, she claimed 50% of this 100 plus crore rupee wealth. Is it a risk? Is it insurable? Does it come from the environment? Because it is actually a risk because none of us, and I'm being brave by saying this, none of us want our wealth to go to any in-law, whether that's a son-in-law or a daughter-in-law. I'm not gender biased, right? All of us want it to go to our sons. No? This unintended recipient of your wealth is called a predator, a disgruntled family member who wants to have your wealth against your wish. And I have been into this profession of estate planning for last 10 years. I am yet to meet a person or family who does not have a predator, right? And what would you be thinking? My family has no predator. We are such good family, there is no chance of a predator here. The only reason you cannot think about a predator today in your family is only one reason. And the reason is you are alive. You are alive protecting your wealth and family. Just think that you are not there in this world. And then make a list of people who could be potential predators. It would actually be a list, not one, two people. And it is your job to preserve or protect your wealth against such kinds of predators, right? Because it is your wealth. So the onus is on you. Now, the purpose of giving this example was that please think beyond yourself, right? Please think beyond yourself, right? So predator is a disgruntled family member who wants to have your wealth against your wish. Like, so let me now go into estate planning. Now let's talk about estate planning. Let's talk about estate planning. So whenever I start a plan station on estate planning, first thing I have to tell is this is not about real estate. So people think I'll be talking something about real estate because this word estate is common between real estate and estate planning. So what actually makes up your estate? What is your estate? The definition says anything you own or anything which you will own after your death forms a part of your estate. जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी estate है वाले दिन वो भी आपकी estate है और जो बाद मिलेगा वो भी आपकी estate. The question is very different here and please answer it. The question is, do you know what do you own today? If I give you a plain piece of paper and I ask you to write the list of all the assets you have, would you be able to create a complete list? How many of you know what you own today?
Just type a Y in the chat box if you know what you know today. How many of you know what do you own today? Others? Yes, no? Okay. 99.9% people in this world do not know what they own. So let me first prove to you that you do not know what you own, right? For this also I'll give you an example. I deal with clients day in and day out, so I have a lot of examples. So I think you would be able to connect more with this. There was this person who was a businessman and he gave his business to his elder son through a will. Post his death, his elder son inherited this business of his. But because he did nothing, his younger son got hold of his mobile phone number and email ID. Now, what will happen? Business goes to the elder one. Mobile phone number and email ID go to the younger one. Now, what will happen? Either both the brothers would start fighting or business would start transferring from the elder to the younger. Neither of which this person wanted. But my question is when I ask you to make your will, how many of you would write in that will? Post my death, my mobile phone number should be given to this person. My email ID should be given to this person. Is your mobile phone number an asset or not? Very simple question. Is it an asset or not? And would it be in your list of assets? Most people do not know what they own. You need a professional to help you know what you own. In today's world, a common person has four types of assets. First are physical assets, land, building, machinery, jewelry, gadgets. Second are financial assets, shares, mutual fund, bank accounts, right? Many financial assets, bonds, etc. Third, which are becoming very important today, they are called digital assets. Mobile phone number, email ID, website URL, domain, hosting, softwares you have purchased. And I can give you some exotic ones also. Credit card points, miles on an airline. Are they not assets? Are they not assets? And lastly, they are intangible assets. Assets which I can't touch. Your trademarks, your logos, your IPRs, your patents, your relationships with people, which are being converted into money, right? And unless you make a complete list of all four of them, you do not know what you own. And the first step in estate planning is know what you own, right? Without knowing what you own, you can't transfer it. And all of them, believe me, are transferable by a will. As simple as a will. Although I am not a big proponent of will, I am not a big advocate of will. I know there are better documents than will, but at least they are transferable by a will. Now, this definition further says anything which you will own after your death is also your estate. What are things which you might own after your death apart from an insurance policy claim which you already know? Let me give you an example of things which you might own after your death. Suppose you were traveling in that Malaysian aircraft that crashed and government of Malaysia pays a claim of 5 crore rupees post your death. Who owns this 5 crore rupees? Who owns this 5 crore rupees? And if you, like most people say, legal heirs, my children, my family, you are completely wrong because the real owner of this money is the person who died, the deceased, because this person has given his life for this money. And now you can ask me a question, how can I ever give away money which I never ever know I will ever own, right? This is a question you should ask. The answer is if you get your will made by a good lawyer, they always add a clause to the will, which is called residual clause or remainder clause, which basically says if I ever own anything which is not mentioned in this will, it will go to these people in these proportion. And this 5 crore rupees becomes the residue and it can be disbursed as per your wishes and desires in this will, right? And sometimes the residue becomes bigger than the main. It's possible. It's very much possible. So the main point is that you should know what you are owning and what you are likely to own. All of it is part of your estate. So I hope everybody understands what is your estate, right? So what is estate planning? Estate planning is a systematic plan to distribute one's estate according to one's wishes in future. When I systematically plan my distribution of my estate post my death, I am doing estate planning, right? Why have an estate plan? Why should you create an estate? First reason is to clearly give your property as per your wishes so that your assets, your property is distributed as per your wishes. The second question is suppose you die
without telling your wishes to the world, would your property still be distributed? Yes, it would still be distributed. But now it will not be distributed as per your wishes. It will be distributed as per law. And in India, this law depends on the religion you follow. And these laws are called succession laws. So if you are a Hindu, it will be distributed as per the Hindu Succession Act 1956. If you are a Muslim, as per Muslim Succession Act 1937. If you are a Christian, as per Indian Succession Act 1925. And by chance, if you live in Goa, this would not be distributed as per any Indian act, but by the Portuguese Family Act, which we have codified into the Goan Civil Code. Do you know Goa is the only state in India which has already same law for all religions, and they are doing it since 1950s. Common civil code is there. Now these succession laws cause complications. Imagine a Hindu marrying a Christian. What law would be applicable on the children? And it's not very simple, Hindu or Christian. Before answering this question, remember two things. India is a secular country, and in India there is something called gender equality. So Hindu and Christian are equal, mother and father are equal. Now tell what relation, what law is applicable on the children. It's complicated. Even finding which law is applicable on me is a task sometimes. And this task is because I have not created a will or I have not done my estate planning. So these succession laws cause complications. And lastly, to minimize chances of disputes in your family so that your wealth does not become the source of fight among your children. It does not spoil the relationships of your children, right? And many people tell me that my children do not fight or will not fight. There's no chance of dispute amongst my children. My family will never have this kind of dispute. So in US there is a saying which says you do not know your children until they have divided your inheritance. That's the biggest truth. I see it every day happening in front of me, right? So to minimize chances of disputes in the family, you should have estate planning. Now, the question is, what is the motive of estate plan? Why should you do your estate planning? Why should you do succession or inheritance planning? इसका मकसद क्या है? इसका पर्पस क्या है? एस्टेट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? शुड यू डू इट बिकॉज यू वांट टू डिवाइड योर वेल्थ? क्या इसका पर्पस आपकी वेल्थ को डिवाइड करना है? शुड यू डू इट बिकॉज यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ? शुड यू डू इट बिकॉज यू वांट टू पास ऑन योर वेल्थ? इज इट रियली अबाउट वेल्थ? क्या इसका पर्पस आपकी संपत्ति, आपकी वेल्थ है? एक्चुअली एस्टेट प्लानिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट वेल्थ. ये वेल्थ का मामला ही नहीं है. ये वेल्थ के बारे में है ही नहीं. The real reason of doing estate planning is not your wealth. The real reason of doing estate planning is and always will be people you love the most. इसका असली रीजन क्या है? वो लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और एक दिन छोड़ के चले जाओगे, वो लोग हैं इसका रीजन, वेल्थ नहीं. इसका असली रीजन क्या है? आपके स्पाउस, आपके बच्चे और कुछ केसेस में आपके पेरेंट्स. ये हैं रीजंस जिसके कारण आपको अपनी एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए. आपकी वेल्थ किसके लिए? हु इज योर वेल्थ फॉर देम? तो हु इज मोर इंपॉर्टेंट, योर वेल्थ और देम? ऑब्वियसली देम. नेवर एवर थिंक आई शुड डू माई एस्टेट प्लानिंग because of the wealth, business, property, assets I have created. No, you should do it because of the people you love the most. You want to secure them. You want to impact their lives, make it easy for them. The focus should be people, not wealth. And I can prove it to all of you that the real reason of doing estate planning is and always will be people you love the most, not your wealth. So are you all ready to do a small activity with me? Just type a Y in the chat box if you are ready to do a small activity with me. Great. अच्छा, आप में जितने लोग कैमरा खोल सकते हैं ना, थोड़ा सा जितने लोग खोल सकते हैं, मतलब यू आर मतलब हम सब फैमिली हैं, प्रेजेंटेबल हैं, तो आप खोल लीजिए. राइट? नहीं खोल सकते कोई बात नहीं, बट इफ यू कैन ओपन, यू ओपन इट, यू विल लाइक इट. चलिए, गुड. नाउ एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या करना है? यू हैव टू सिट स्ट्रेट, बोथ द फीट्स ऑन द ग्राउंड एंड हैंड्स ऑन योर लैप. सीधे बैठ जाइए, दोनों फीट ग्राउंड पे, हाथ अपने घुटनों पे. एंड क्लोज योर आईज फॉर 2 मिनट्स. दो मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए. सिट डाउन, सिट डाउन. क्लोज योर आईज फॉर 2 मिनट्स and concentrate on your breath, inhaling of breath
exhaling of breath, inhaling of breath, exhaling of breath. Now imagine that you have just passed away. Imagine करें आपकी अभी अभी डेथ हुई है. What is the scene around you? How are people reacting to this news that you are no longer alive? And who is reacting in what way? Now slowly take your thoughts to 3 months after you have passed away. अब 3 महीने बीत चुके हैं आपकी डेथ को. Now what is the scene? How are different parts of your life coming to term with you not being alive? Who has taken control of everything after you have died? किसने सब कुछ संभाल लिया आपके बाद? Is this person capable of doing what you are capable of doing today? What if this person would have died before you and then you died? Now who would have taken control? अगर इस व्यक्ति की डेथ आपसे पहले हो जाती तो अब कौन ध्यान? Are there any assets of yours about which no one knows? Do you have minor children? In case both you and your spouse pass away, who would get the custody of your child? And what have you done for that? What are the biggest strengths of your family? And what are their biggest weakness? Now slowly open your eyes and tell me what were you thinking about? Your wealth or family? बताएं आप किसके बारे में सोच रहे थे, वेल्थ के बारे में या फैमिली के? कितने लोगों के दिमाग में उनके एसेट्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस आया? इट्स नॉट अबाउट एसेट्स, ये वेल्थ का मामला ही नहीं है. इट इज एक्चुअली फैमिली, नथिंग बट फैमिली, नथिंग बट फैमिली. और ये जो आपने अभी एक्सरसाइज करी, ये फर्स्ट स्टेप है एस्टेट प्लानिंग की तरफ. डेथ से बड़ा सच नहीं है जो हम देखना ही नहीं चाहते. आई जस्ट मेक यू लुक एट योर डेथ एंड लुक एट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट डेथ इफ यू डोंट प्लान इट प्रॉपरली. मैं हमेशा कहता हूँ मेक योर डेथ ब्यूटीफुल. लोगों को कहना चाहिए बड़ी शान से आया था और शान से ही गया है ना, मुसीबत नहीं छोड़ के गया. राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे आपसे. आई जस्ट रिपीट दोस क्वेश्चन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. The first question I asked is who would take control of everything after you die? And most of you would have thought about your spouse, right? But then I asked you two very tricky questions. Is this person capable of doing what you are capable of doing? Question is, are you involving your spouse in financial decision making? Are you making them financially literate? Do they know how to operate your accounts and your finances? आप कितनी भी छोड़ जाओ या अपने हस्बैंड के लिए छोड़ जाओ, अगर उनको वो वेल्थ मैनेज करनी नहीं आती तो छोड़ने का कोई फायदा नहीं है. और आपकी ड्यूटी है उनको या आपकी ड्यूटी है कि यू इन्वॉल्व देम इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. और ये फर्स्ट स्टेप है स्टेट प्लानिंग का कि आई एम ट्रेनिंग द नेक्स्ट पर्सन टू टेक ओवर दिस वेल्थ. राइट, मैं कितनी भी आपकी विल या ट्रस्ट बना दूं, अगर आपने ये एक चीज नहीं करी तो आई विल फेल इन माई ड्यूटी. मैं आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर. राइट, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. राइट, इन्वॉल्विंग योर स्पाउस इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके जिन्होंने इक्विटी पोर्टफोलियो बना रखे हैं 25 CAGR से हर साल, और उनकी वाइफ अकाउंट में फर्क नहीं पता क्या होगा इसका. राइट, तो इट्स नॉट ओनली गिविंग, इट्स हेल्पिंग देम मैनेज इट, मेकिंग देम लर्न इट. Then I asked you a question, what if your spouse passes away before you? हम हमेशा वो लकी वाले नहीं होते जो पहले चले जाए, कई बार तो अनलकी भी होते हैं ना, सेकंड वन टू गो. अब कौन ध्यान? नाउ इफ यू आर अ न्यूक्लियर फैमिली यू विल हैव टू थिंक बियॉन्ड द फैमिली. इट्स ट्रिकी, पर मुझे ये दो लोग चाहिए क्योंकि विल बनानी है तो मुझे उसमें कम से कम दो एग्जीक्यूटर अपॉइंट करने हैं. और ये दो ही लोग आपके एग्जीक्यूटर हैं जो आपने अभी सोचे, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस. राइट, देन आई आस्क्ड यू about your assets. Have you created a system to pass information to the next generation? We'll discuss that in detail. What are the strengths of your family and what are their weakness? Right, you have to use the strengths to overcome the weakness. और ये जो स्टेप हमने लिया है ना, फर्स्ट स्टेप जो अभी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नाउ आर मोर देन विलिंग टू डू समथिंग अबाउट इट. राइट, इस एक्टिविटी से पीपल गेट एक्टिवेटेड. राइट, चलिए लेट्स मूव अहेड. लेट्स मूव अहेड. सम क्वेश्चंस फॉर यू and answer them truthfully for yourself. Answer them truthfully for yourself. अब मुझे बार बार लोग पूछते do I need to do estate planning, is it for me? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ. मेरे हर एक क्वेश्चन के दो पॉसिबल आंसर है, या तो यस या नो. अगर आपका आंसर यस है आप वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, और अगर नो है तो आप एन टाइप करेंगे चैट बॉक्स में. अगर आपका आंसर है यस आई वांट this to happen, yes I would like this to happen, yes it would be good if this happens, type a y. Otherwise type a n in the chat box. Right,
Each one of you has to participate in this. क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है, do you want to have full control over your property while you are alive? Do you want that your property remains under your control till you are alive? क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति पर आपका ही अधिकार हो आपकी आखिरी सांस तक? ऑल ऑफ यू वुड लाइक टू डू दैट, प्लीज टाइप अ वाई इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज टाइप अ एन। अगर आप चाहते हैं ये हो तो वाई टाइप करिए चैट बॉक्स में। एवरीबडी एवरीबडी, ऑल ऑफ अस should ensure that we retain control over our property while we are alive. Why? Because this control of yours over your property ensures your financial security. जो आपका कंट्रोल है आपकी संपत्ति पे, यही आपकी आर्थिक सुरक्षा है। एंड पीपल हु गिव अप दिस कंट्रोल व्हाइल दे आर अलाइव, दे बिकम द सिंघानियाज ऑफ दिस वर्ल्ड। आप सबने रेमंड का केस सुना है। फादर ने अपने बेटे को उस टाइम के 1,000 करोड़ रुपए के शेयर दे दिए। उस टाइम जो 33% स्टेक था रेमंड में उस टाइम। और आज फादर कहाँ है? रोड पे रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और टैक्स आ रहे हैं अपनी खुद। वाई? बिकॉज ही गेव अप कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी व्हाइल ही वाज अलाइव। तो वन थिंग विच शुड रिमेंबर, और ये सबसे बड़ा रूल है फाइनेंस का जो शायद हम डिस्कस नहीं करते। सबसे बड़ा रूल क्या है फाइनेंस का? लव एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। सबसे प्यार करो, खूब प्यार करो, बट डू नॉट लव एनीबडी मोर देन यू। अपने से ज्यादा प्यार किसी से मत करो। प्यार किससे करो? अपने आप से। जो आदमी अपना ध्यान नहीं रख सकता, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी और की कर भी नहीं। तो नेवर एवर लीव कंट्रोल ओवर योर प्रॉपर्टी व्हाइल यू आर अलाइव। एंड रिटायर्ड पीपल, सीनियर पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू यू। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, मैं से जिंदगी से आजाद हो, पैसों से मत आजाद हो, राइट? कीप कंट्रोल टिल यू आर अलाइव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस इन केस यू बिकम डिसेबल्ड? सपोज आप पैरालिटिक हो जाते हैं, मेंटली अनसाउंड हो जाते हैं, क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने परिवार का आर्थिक रूप से ध्यान रखना चाहो? जो जो रखना चाहेंगे टाइप ऑफ वाई इन द चैट बॉक्स। If you like to take care of your family and yourself in case you become disabled or incapacitated, type a Y in the chat box. Because I think everybody would like to do that, right? Now, my third and the most important question in this series of questions: do you want to give what you want to whom you want, the way you want, and when you want after your death? क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति आपके बाद उसी को मिले जिसको आप देना चाहते हैं, उसी समय मिले जिस समय आप देना चाहते हैं, उतनी ही मिले जितनी आप देना चाहते हैं, और उसी तरह मिले जिस तरह आप देना चाहते हैं? दैट मीन्स you not only want to keep control over your property while you are alive, you want to maintain that control even after you are dead. जीते जी तो चाहते ही हो कि प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में रहे, डेथ के बाद भी वो कंट्रोल नहीं, डेथ के बाद भी चाहते हो मेरी मर्जी से बटे, मेरी इच्छा से बटे, जिसको मिले। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज ऑफ क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू सेव एवरी प्रोफेशनल फीस, ट्रांसफर कॉस्ट एंड कोर्ट कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ योर वेल्थ? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति आसानी से, बिना किसी झगड़े के, पीसफुली आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए? ऑल ऑफ यू वुड लाइक टू डू दैट, जस्ट टाइप अ वाई इन द चैट बॉक्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन, कितने लोगों ने इन चारों क्वेश्चन के आंसर हाँ करे? क्योंकि जिन जिन लोगों ने इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ किया है, उनको एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि एस्टेट प्लानिंग ही वो तरीका है जिससे कि इन चारों क्वेश्चन के आंसर हाँ होने वाले हैं, राइट? तो व्हाट इज एस्टेट प्लानिंग? इट्स अ मेथोडोलॉजी टू मेक द आंसर्स टू दीस 4 क्वेश्चंस, यस, राइट? दैट, एंड आई थिंक एवरीबॉडी रिक्वायर्स एस्टेट प्लानिंग। इस दुनिया का सबसे बड़ा मिथ क्या है? एस्टेट प्लानिंग इज फॉर क्लासेस नॉट मासेस। नो, एस्टेट प्लानिंग इज फॉर मासेस नॉट क्लासेस। अगर मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ है, आपकी 20 करोड़ है, तो मेरे लिए मेरे 1 करोड़ उतने इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव अर्नड इन माय एंटायर लाइफ, एंड माय चिल्ड्रन नीड दैट, माय वाइफ नीड्स दैट, माय हस्बैंड नीड्स दैट आफ्टर मी, right? So that I hope everybody is clear about estate planning, ki what is estate planning and why you should do it. Now I'll go to some more concerns of yours, and now we'll go into the technicals. ठीक है? सबसे पहले हम फैमिली कंसर्न्स की बात करेंगे। We'll talk about family concerns. पहला कंसर्न है risk that your assets after your death might not pass on to your spouse, because if you die without a will,
पीपल अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस आर योर लीगल हेयर्स। तो रिस्क क्या है कि आपकी डेथ की सारी संपत्ति आपकी वाइफ या हस्बैंड पे नहीं जाएगी, क्योंकि उनके अलावा बाकी लोग भी आपके लीगल हेयर्स। तो क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोगों ने विल बनाई है एज ऑन डेट। हाउ मेनी ऑफ यू मेड योर विल एज ऑन डेट। नहीं, नो तो मुझे पता है, जिसने बनवाई है वो यस कर दे। गुड, वन यस आई हैव गॉट। ओके, गुड। नाउ क्वेश्चन इज, इफ यू डाई टुडे विदाउट मेकिंग अ विल, हु वुड गेट योर एसेट्स एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन। क्योंकि आपने विल नहीं बनाई है ज्यादातर लोगों ने, इस कारण अब आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी वेल्थ किसको मिलेगी और किस प्रोपोर्शन में मिलेगी, ये डिपेंड करता है आपके रिलीजन पे। एज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू आर हिंदूज इन दिस सेशन, राइट, मोस्ट ऑफ यू आर हिंदूज इन दिस सेशन, आई विल टेल यू हु आर द लीगल heirs ऑफ अ हिंदू, मेल एंड फीमेल। हिंदू में मेल और फीमेल के लीगल heirs अलग होते हैं, राइट। तो अगर आप एक हिंदू पुरुष हैं तो आपके लीगल heirs कौन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नोट करना चाहें, नोट कर लीजिए अपने लिए, आपको पता चलेगा मेरे लीगल heirs कौन है। अगर आज की डेट में मेरी डेथ होती है तो मेरी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। तो अगर आप एक हिंदू मेल है तो सबसे ऊपर अपनी मदर का नाम लिखिए इफ शी इज अलाइव। On the top, write the name of your mother if she is alive. You are lucky enough to have a mother who is alive today. Write her name on the top. Below it, write the name of your wife if she is alive. Below it, write the name of all your children who are alive today, one below the other. Doesn't matter if they are son or daughter, married or unmarried, minor or major, adopted or biological, sane or insane, doesn't matter. अगर आपका बच्चा है और जिंदा है तो उसका नाम लिख लीजिए इस लिस्ट में, एक के नीचे एक। Below it, if any of your child has passed away, लीविंग बिहाइंड अ चाइल्ड और स्पाउस हु इज अलाइव टुडे। अगर आपके किसी बच्चे की डेथ हुई है, पर जिस बच्चे की डेथ हुई है उसके बच्चे या स्पाउस में से कोई जिंदा है, तो उस बच्चे का नाम लिख लीजिए जिसकी डेथ हुई है इसी लिस्ट में। अब काउंट करें कितने लोगों के नाम लिखे हैं आपने, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ पीपल यू हैव रिटन। आपकी वेल्थ इन सब में बराबर बांट दी जाएगी, यही हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। ऑल ऑफ देम गेट योर वेल्थ इक्वली, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, राइट। चलिए एक बार फीमेल का बताता हूँ, फिर क्वेश्चन। इफ यू आर अ हिंदू फीमेल, राइट द, एंड यू आर अ मैरिड हिंदू फीमेल, write the name of your husband on the top if he is alive. Below it, write the name of all your children who are alive today. And below it, if any of your child has passed away, leaving behind a child. मैं spouse नहीं कह रहा. If your child has passed away, leaving behind a child, write the name of the child who has passed away. Now count. It will be divided equally among all of them. So my question is this system of division acceptable to you or not? क्या आप चाहते हैं कि ये ऐसी डिवाइड हो, या आप चाहेंगे पहले मेरे स्पाउस पे जाए उसके बाद बच्चों। व्हाट इज बेटर, फर्स्ट टू स्पाउस देन टू चिल्ड्रन, और टू ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली, व्हाट वुड यू प्रिफर। एंड इफ यू से फर्स्ट टू वाइफ और फर्स्ट टू हस्बैंड देन टू चिल्ड्रन, देन प्लीज मेक अ विल, प्लीज मेक अ विल, अदरवाइज दिस डिफॉल्ट वुड हैपन विच यू जस्ट नोटेड डाउन। तो इस डिफॉल्ट को ओवररूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विल बनानी पड़ेगी कम से कम, है ना। मैं कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ कि विल से बेटर ऑप्शन भी है, राइट, विल डिस्कस, राइट। Second question which I need to ask you is, how many of you are okay with one part of your wealth going to your mother? How many of you are okay with one part of your wealth going to your mother? मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप सब कहेंगे yes, I don't have any problem with it. पर फिर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा, do you play chess? क्या आप लोग चेस खेलते हो? Who is a good chess player? Who thinks two moves ahead before making a move? और यहाँ पे भी दो मूव आगे की सोचना, इमीडिएट मत सोचना। After you it goes to your mother. Very good. But after mother, where would your wealth go? To mother's legal heir, not to your legal heir. And they are your siblings. Now, how many of you are okay? तो ये wealth का मामला है, जरा ध्यान से. No? Okay. Good. So I basically told you the Hindu Succession Act 1956 में legal heirs कौन होते हैं. uh, ये लीगल हेयर्स होते हैं, ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया, वही है जो मैंने बोला था, वही है। और हिंदू फीमेल के ये होते हैं, राइट। अच्छा, चलिए हमारे पे टाइम है तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जो हिंदू फीमेल का सक्सेशन है उसके बारे में दो बातें हर एक मेल को पता होनी चाहिए, राइट। हिंदू फीमेल सक्सेशन वर्ल्ड में सबसे अजूबा सक्सेशन है, राइट। उसका कोई पैरेलल वर्ल्ड में है ही नहीं, और किसी रिलीजन में भी नहीं। जो हिंदू, इफ इट्स अनमैरिड हिंदू फीमेल, फादर एंड मदर, everything goes is equally divided between father and mother, and father mother not there, then legal heirs of father,
इफ लीगल हेयर्स ऑफ फादर आर नॉट देयर, लीगल हेयर्स ऑफ मदर, राइट? तो ऐसे चलता है वो। चलिए, तो पहली चीज आपको हिंदू फीमेल सक्सेशन के बारे में क्या पता होनी चाहिए? इफ अ हिंदू फीमेल डाइज विदाउट चिल्ड्रन बट अ सर्वाइविंग हस्बैंड, एक हिंदू फीमेल है, जब उसकी डेथ हुई, उसका कोई भी बच्चा जिंदा नहीं है, पर उसका पति जिंदा है, हस्बैंड जिंदा है, देन ऑल द वेल्थ विच शी गॉट फ्रॉम हर पेरेंट्स साइड, जो उसको अपनी मायके से प्रॉपर्टी मिली, पेरेंट्स के साइड से प्रॉपर्टी मिली, वो सारी वापस पेरेंट्स की साइड के हस्बैंड को। यही हिंदू फीमेल सक्सेशन एक्ट है, राइट? अगर उसने विल नहीं बनाई तो आप में से जितने लोग सोच रहे थे ना मेरी वाइफ पे क्या है, विल क्यों बनवाऊं, इसलिए बनवाओ, और ये मत कहना कुछ नहीं मिला, वो आंसर गलत आंसर है ना? इवन ज्वेलरी which they were gifted at the time of marriage or post marriage is an asset as per law, it's an asset, or and that's स्त्री धन, women's property, right? उस पे तो laws अलग ही लगते हैं, but all of this is when you don't make a will, right? That's the first thing. Second, इससे भी इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। ओके, somebody wants me to repeat. मैं कह रहा हूँ, अगर एक हिंदू फीमेल की जब डेथ हुई, उसके हस्बैंड जिंदा है, बच्चा कोई भी जिंदा नहीं है, ऐसे केस में जितनी प्रॉपर्टी उसको अपनी पेरेंट्स की साइड से मिली, चाहे वो विल से मिली, गिफ्ट में मिली, शादी के टाइम मिली, शादी से के बाद मिली, वो सारी वापस पेरेंट्स की फैमिली में चली जाएगी, वो हस्बैंड को नहीं मिलेगी, अगर उसका सोर्स फीमेल के पेरेंट्स की फैमिली। दूसरा दूसरा सिचुएशन बताता हूँ, इससे भी इंटरेस्टिंग है। देयर इज अ हिंदू फीमेल हु हैज लॉट ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ये ना हस्बैंड की प्रॉपर्टी हस्बैंड से मिली, ना पेरेंट से मिली, ये अपनी मेहनत से कमाई है उसने। एंड व्हेन शी पासेस अवे, नाइदर हर हस्बैंड नॉर हर चिल्ड्रन आर अलाइव, उसका कोई बच्चा जिंदा नहीं है, उसका कोई हस्बैंड भी जिंदा नहीं है, तो हु वुड गेट दिस प्रॉपर्टी, वेयर शुड इट गो? आपके हिसाब से किस कहाँ जानी चाहिए? पेरेंट्स। किसके पेरेंट्स? इट विल गो टू द लीगल हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, इट विल नॉट गो टू द पेरेंट्स ऑफ द फीमेल। और लीगल हेयर ऑफ हस्बैंड में कौन बचा? देखिए ये डाटा देखो, नीचे वाला तो कोई जिंदा है ही नहीं, हस्बैंड की मदर, सारी प्रॉपर्टी मदर इन लॉ को मिल जाए। ये बात आप एक हिंदू फीमेल को बता दो, वो तभी विल बना देंगी। ये एक जगह है जहाँ पे नहीं जानी चाहिए। मैं पूना में एक सेशन ले रहा था, वो बहुत सारी फीमेल्स बैठी हुई थी, तो मैंने ये बताया, वो कहती है इससे अच्छा तो दान कर दो। तो जो मोटिवेशन है टू मेक अ विल, वो लॉ में ही दी हुई है उन्होंने, आपको तो लॉ पे अवेयर कराना है खाली। दैट वाज अ जोक, बट ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट मेक अ विल। ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज यू हैव नॉट मेड अ विल, राइट? नाउ नाउ द क्वेश्चन इज, बाय व्हाट एज शुड अ नॉर्मल इंडियन क्रिएट अ विल? किस उम्र तक एक आम हिंदुस्तानी को विल बना देनी चाहिए? किस उम्र तक एक आम हिंदुस्तानी को विल बना, बाय व्हाट एज शुड अ नॉर्मल इंडियन मेक अ विल? चलिए, जो लोग 50 60 40 बोल रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज, जिससे आपकी विल कब बनाना, पेज के ऊपर एक पीस ऑफ पेपर या मोबाइल फोन कहीं पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, DDMMYYY फॉर्मेट में, DDMMYYY फॉर्मेट, डेट ऑफ बर्थ लिखिए इस फॉर्मेट में, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए एक बारी। हम जानना चाहते हैं आपको आपकी विल कब बना देनी चाहिए। अब लिखा आप लोगों ने, अब इसके नीचे लिखिए, डेट ऑफ डेथ, कब बनानी चाहिए विल? बिफोर यू डाई, एंड नन ऑफ यू नोज योर डेट ऑफ डेथ, तो व्हेन शुड यू मेक अ विल? टुडे, टुडे। एक्चुअली यू आर लेट। ये क्वेश्चन ही गलत है, कब विल बनानी चाहिए, आप लेट हो गए। आपको आपकी विल उस दिन बना देनी चाहिए जिस दिन आप मेजर हुए थे और पहला एसेट एक्वायर किया था लाइफ में। दैट वाज द आइडियल डे टू क्रिएट इट, राइट? बट यू आर लकी that you can still make it. Many people have either become incapacitated or have died before making the will. And who has suffered because of it? People they love the most. उन्हीं को दिक्कत हुई ना इस वजह से। Do not ride your luck. Do not ride your luck. Make it today. Don't postpone it. Don't postpone it. Why do most people not write a will? People say I'm married, so I don't need to make a will because my spouse will get everything. Totally false. मैंने आपको बताया स्पाउस के अलावा किस किस पे जाएगी। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं आई हैव नॉमिनीज फॉर ऑल माय बैंक अकाउंट्स और आई हैव जॉइंट अकाउंट्स ऑन आइदर सर्वाइवर बेसिस, व्हाई शुड आई मेक अ विल? मेरे पे रियल एस्टेट है नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनमें नॉमिनेशन किया हुआ है, या जॉइंट अकाउंट खोल रखे हैं वाइफ के साथ, सब कुछ तो नॉमिनी या जॉइंट होल्डर को मिलेगा, विल क्यों बनाओ? सो डू यू नो, a nominee is not the owner of the funds. Nominee is just the caretaker or the distributor of the funds. एग्जाम्पल की तरह, अगर मेरी एक 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट है जो मेरे नाम पे और मेरी वाइफ उसमें नॉमिनी है,
मेरी डेथ के बाद बैंक ये 10 लाख रुपए मेरी वाइफ को दे देगा। किस लिए? ओन करने के लिए नहीं, बांटने के लिए। और मेरी वाइफ को ये मेरे लीगल हेयर्स को बांटने पड़ेंगे एज पर लॉ, अगर मैंने विल नहीं बनाई, या अगर मैंने विल बनाई है तो विल में जिसके नाम लिखे हैं उसको देने पड़ेंगे। दैट मीन्स नॉमिनी इज जस्ट अ केयर टेकर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द फंड्स, नॉट द ओनर ऑफ द फंड्स। का केस है जॉइंट अकाउंट। सपोज आपने एक जॉइंट अकाउंट खोला हुआ है अपनी वाइफ के साथ, आपका एक जॉइंट म्यूचुअल फंड फोलियो है वाइफ के साथ, जो आइदर सर्वाइवर बेसिस पे, और आपकी डेथ हो जाती है, 20 का आपकी डेथ हो जाती है, तो लॉ कहता है इफ अ एसेट इज जॉइंटली ओन्ड इट इज इक्वली ओन्ड। लॉ के हिसाब से 20 में से 10 लाख आपके हैं, 10 लाख आपकी वाइफ के। आपकी डेथ के बाद आपके 10 लाख रुपए आपके लीगल हेयर्स को जाएंगे, सर्वाइवर को नहीं जाएंगे। और वो लीगल हेयर्स एज पर विल भी हो सकते हैं, एज पर लॉ भी हो सकते हैं। आइदर सर्वाइवर जो आप टिक करते हो, कहाँ पे टिक करते हो, मोड ऑफ ओनरशिप या मोड ऑफ ऑपरेशन। आइदर सर्वाइवर जो आप टिक करते हो फॉर्म्स में, वो मोड ऑफ ऑपरेशन है या मोड ऑफ ओनरशिप है। दैट जस्ट ऑपरेशंस, वो ओनरशिप है ही नहीं। तो बिल्कुल इस गलत फहमी में मत रहिएगा, आइदर सर्वाइवर कर दिया, नॉमिनेशन कर दिया तो विल की जरूरत नहीं है। दोनों ही चीजें करो आप, आइदर सर्वाइवर वाले अकाउंट भी खोलो, नॉमिनेशन भी करो, बट बैक इट अप विद अ विल। अपनी विल में लिखो, इन ऑल माई अकाउंट्स वेयर माई वाइफ इज अ joint holder, she becomes the complete owner after my death. In all my accounts where my wife is a nominee, she becomes the owner after my death. अब प्रॉब्लम सॉल्व है। खाली नॉमिनेशन और जॉइंट अकाउंट से काम नहीं चलने वाला, राइट। थर्ड, बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स अ टैबू, दे आर सुपरस्टिशियस ऑफ मेकिंग अ विल। विल बनाई तो अब जल्दी डेथ हो जाएगी। तो इसके बारे में तो मैं आपसे क्या बोलूँ, बस एक डाटा पॉइंट दे सकता हूँ आपको कि कोविड के बाद आई वुड हैव हेल्प्ड मोर देन 45,000 पीपल क्रिएट देयर विल्स, एंड फॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम आर अलाइव, राइट। विल बनाने से किसी की डेथ नहीं होती, राइट, ये अब शकुन नहीं है। देन आई गेट पीपल हु से माय चिल्ड्रन विल नेवर फाइट ओवर माय एसेट्स। मैंने इतने संस्कारी बच्चों की परवरिश करी है, वो मेरी संपत्ति के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। मैंने इतना अच्छा कैरेक्टर दिया है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो कभी नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपसे अभी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर आप ऐसे पेरेंट हैं तो, जब आपके बच्चे छोटे थे और आप इनके आए, क्या ये उन खिलौनों के लिए लड़े? और जिन बच्चों से आपके जीते जी आपके सामने अपने खिलौने नहीं बांटे गए, आपकी संपत्ति बांट लेंगे? जब उनका एक लाइफ पार्टनर और फैमिली भी इन्वॉल्व है, का इंटरेस्ट है इस एसेट्स में, डू नॉट एज्यूम एन एग्रीमेंट अमंग्स योर चिल्ड्रन अबाउट हाउ योर वेल्थ वुड बी डिवाइडेड आफ्टर यू। Create one before you die. That's the pious duty of every parent. That my wealth will not become the reason of spoiling your relationships. एक बच्चे की सबसे बड़ी एसेट क्या है आज की डेट में? रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स। आजकल तो भाई बहन होते ही कितने हैं, और आप उनकी भी रिलेशनशिप खत्म कर दोगे आपस में, आप करोगे। अगर आपके बच्चे की वेल्थ के लिए लड़ते हैं, इसके जिम्मेवार आप हैं, बच्चे नहीं है। इसके जिम्मेवार आप हैं, बच्चे नहीं है। क्योंकि आप सेल्फिश हो गए। आपने कहा मैं जीते जी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा अपने लिए, मैं बता के नहीं जाऊंगा कैसे करना। ना, पेरेंट्स सेल्फिश नहीं हो सकते कभी। दुनिया में हर व्यक्ति सेल्फिश हो सकता है, पेरेंट्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं बताते पेरेंट्स, क्यों नहीं बताते कि मैं विलेन क्यों बनूं? या इनको पता चल जाएगा आज, अरे आप ऑलरेडी उनकी लाइफ में कितनी बार विलेन बन चुके हो ऑलरेडी, एक बार और बन जाओ भले के लिए। प्लीज डिस्कस ओपनली योर इनहेरिटेंस प्लान विद योर चिल्ड्रन। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और जिन लोगों ने ये करे है ना, उनके यहाँ चांसेस ऑफ डिस्प्यूट रिड्यूस हो जाते हैं। गारंटी अभी भी नहीं है, पर चांस कम हो जाते हैं जब पेरेंट्स अपने मुंह से कहते हैं कि हाँ हम ऐसा करना चाहते हैं। ओपन डिस्कशन करो, और इस डिस्कशन में, इस फैमिली मीटिंग में अपने बच्चों के स्पाउसेस को भी बुलाओ। आपकी फैमिली का कोई भी एग्रीमेंट उनके स्पाउस के बिना पूरा नहीं। दैट इज 50% ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इन द फैमिली। उनको साथ लिए क्या फैमिली में एग्रीमेंट बन सकता है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, राइट। प्लीज डिस्कस योर एस्टेट ऑन इनहेरिटेंस प्लान वेरी ओपनली इन द फैमिली। और मैंने देखा एक बात, 90% केसेस में झगड़ा प्रॉपर्टी या एसेट्स का है ही नहीं, कि एक बच्चे को लगता है कि मेरे साथ आप दूसरे का फेवर करते हो, प्रॉब्लम वहां पे है। और जब पेरेंट्स कहते हैं ना हमें, हमारे लिए तुम सब बराबर हो, ये रीजन है, ये एक्सेप्टेंस इज मोर देन अ सरप्राइज विच कम्स लेटर, देन इट बिकम्स इन्फ्लुएंस ऑफ वन चाइल्ड ओवर द अदर। फिर क्या करा ली, राइट। चलिए, मैं दो तीन बातें रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टेट प्लानिंग का। लोग कहते हैं मेकिंग अ विल इज कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव।
neither of it. Will से आसान डॉक्यूमेंट इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, लीगल सिस्टम में है ही नहीं. इज द इजिएस्ट डॉक्यूमेंट टू क्रिएट. डू यू नो अ विल नीड नॉट बी टाइप स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड. विल को टाइप करके बनाना, स्टैम्प पेपर पे बनाना या कहीं पर रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. तो आप अपने घर पर बैठे बैठे एक प्लेन पेपर पे अपनी ओन हैंड राइटिंग में अभी विल बना सकते हो और वो लीगली वैलिड होगी. इतना आसान है. विल को क्या चाहिए? आपने प्रॉपरली विल को लिखा अपने हाथ से, नीचे सिग्नेचर करे और दो विटनेस ने कंफर्म करा उसने आपको सिग्नेचर करते हुए देखा, बस. दिस अ लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट. पर क्वेश्चन ये है, डू यू नीड टू टाइप इट प्रॉपरली, डू यू नीड टू रजिस्टर इट प्रॉपरली, डू यू वांट टू, शुड यू पुट इट ऑन अ स्टैम्प पेपर? आई वुड से यस, यू शुड डू ऑल थ्री ऑफ देम. क्योंकि ऐसा करके आप विल के चांसेस ऑफ चैलेंज रिड्यूस कर रहे हो. अगर आपने प्रॉपरली टाइप करा, स्टैम्प 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनाई और उसको रजिस्टर करा दिया, तो चांसेस ऑफ चैलेंजिंग अ विल रिड्यूसेस, राइट. तीनों चाहिए, पर बिना करे भी ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, राइट. सी, अब मैं कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ जो जनरली आप शायद सोचोगे या नहीं या करते नहीं. पहली बात, विल इज योर लास्ट मैसेज टू द वर्ल्ड, है ना. आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ चार्टेड अकाउंटेंट, आई एम जस्ट अ स्टेट प्लानर, राइट. पर मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं लॉ पे, और वर्ल्ड की, मतलब बहुत सारी कंट्रीज की बुक्स पढ़ी है लॉ पे, इनहेरिटेंस की. एक वर्ड जो बार बार आता है ना, फ्रेज, जो हर एक, मतलब बहुत सारे लॉयर्स ने वो कोट किया है, बहुत सारे जजेस ने वो कोट किया है, एक फ्रेज. और वो फ्रेज क्या है? विल ऑलवेज स्पीक्स फ्रॉम द ग्रेव. विल तब बोलेगी जब आप बोलने लायक नहीं होगी, तब बोलेगी ना ये. तो आप विल में क्लैरिफाई नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि वो तो तब बोलेगी जब आप नहीं हो. इट शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड. इसमें ऑन माई डेथ एंड आफ्टर माई डेथ आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. ये जो उसकी जो माइक्रो है ना, उसमें प्रॉब्लम है. आप समझो, आप अपनी पूरी वेल्थ का चेक, तो उसकी ड्राफ्टिंग तो प्रॉपर होनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट इज ड्राफ्टेड प्रॉपरली बाय अ स्पेशलिस्ट एस्टेट प्लानिंग लॉयर. हर व्यक्ति विल की ड्राफ्टिंग या हर लॉयर विल की ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका स्पेशलिस्ट नहीं है. आपको सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए जो आपकी विल ड्राफ्ट करे इस तरीके से कि फ्यूचर में उसमें कोई भी चीज एम्बिगस ना हो. बट बाय डूइंग सो, और ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, बाय डूइंग सो you are punishing success and rewarding failure. You are actually punishing success and rewarding failure. जिस बच्चे ने बचपन से लेकर आज तक आपकी सुनी, डिसिप्लिन से रहा, सब कुछ ठीक किया और सक्सेसफुल हो गया, उसको सजा मिल रही है इस बात की. और जिसने कुछ नहीं किया पूरी लाइफ में, मजे करे और सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसको उसका इनाम मिल रहा है. आर यू फेयर? आर यू फेयर? प्रॉब्लम विद पेरेंट्स इज यू हैव टू बी फेयर एंड अपीयर टू बी फेयर. आपको फेयर होना भी है और सामने वाले को लगना भी चाहिए कि आप फेयर है. और यही प्रॉब्लम है. आखिरी बात, इस सब ऑनगोइंग डिबेट, आखिरी बात इस बारे में करके मैं खत्म करता हूँ. और ये आप सोचिए, आर यू ओनली पासिंग योर वैल्यूएबल्स इन अ विल टू द नेक्स्ट जनरेशन, और आर यू ऑल्सो पासिंग योर वैल्यूज टू द नेक्स्ट जनरेशन? क्या देते हो आप? आपकी विल में क्या दे रहे हो बच्चों को? खाली अपने वैल्यूएबल या अपनी वैल्यूज भी? आपने सारी उम्र एक वैल्यू क्रिएट करी, अपना एक प्रिंसिपल का लाइफ का, मेहनत करो, और ज्यादा सामान उसको दे रहे हो जिसने मेहनत जिंदगी में नहीं. तो इज इट एज पर योर वैल्यूज इन लाइफ? राइट. जस्ट थिंक अबाउट इट. एस्टेट प्लानिंग ऐसी चीज नहीं है रात को सोचा और सुबह कर दी. इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट, थॉट्स, राइट. चलिए, आई एम सॉरी, सॉरी अगर आपको थोड़ा सा इट इट इमोशनली ट्रबल्स यू, है ना. चलिए अब आगे चलते हैं. अ विल कैन बी रिवोक्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. विल इज ऑलवेज चेंजेबल. आप कैसी भी विल बनाओ, उसे इररिवोकेबल भी लिख दो ऊपर, तब भी वो चेंज हो सकती है, राइट. चलिए अब हम अगला कंसर्न पढ़ते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव माइनर चिल्ड्रन? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अभी माइनर है? आप में से कितने के बच्चे अभी माइनर है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव माइनर चिल्ड्रन? माय क्वेश्चन टू यू इज, एंड आई एम सॉरी मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है. इन केस both you and your spouse pass away while the child is minor, who gets the custody of your child? अगर आप दोनों की डेथ हो जाती है जब बच्चे आपके माइनर हैं, तो आपके बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? और आप अगर सोचते हैं ना ये ग्रैंड पेरेंट्स या मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को मिलेगी, तो आप बिल्कुल, इट विल नाइदर गो टू योर पेरेंट्स और हर पेरेंट्स, योर सिस्टर हर सिस्टर, योर ब्रदर हर ब्रदर, बिकॉज एज पर द इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट,
There are only three types of guardian. The first one is called natural guardian, and only parents are natural guardian to a child. पेरेंट्स के अलावा एक बच्चे का कोई और नेचुरल गार्डियन होता ही नहीं, और पेरेंट्स की एब्सेंस में सोसाइटी बिकम्स द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, समाज बन जाता है गार्डियन बच्चे का। एंड सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज पे पावर है इस बच्चे का किसी को भी कस्टडी दे दे, बच्चे की, मैं बच्चे की फिजिकल कस्टडी की बात कर रहा हूँ। और जजेस इंडिया में प्रेफर ऑर्गेनाइजेशंस ओवर इंडिविजुअल्स टू गिव कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। तो मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स के अभाव में, पेरेंट्स नहीं जिंदा रहते तो समाज बन जाता है गार्डियन बच्चे का, और समाज को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में पावर है बच्चे की कस्टडी की, और जज इंडिया में प्रिफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ओवर इंडिविजुअल्स। वो संस्थाओं को प्रिफर करते हैं, प्रिफर नहीं करते कस्टडी दे। ओके, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर एंड वेल बीइंग इज ऑन द जज। और जज कहते हैं कि आई वुड गिव कस्टडी वेयर सिस्टम्स आर इन प्लेस विच आई कैन मॉनिटर। सिस्टम्स कहाँ पे होंगे? ऑर्गेनाइजेशंस में। घर के अंदर तो सिस्टम नहीं होता। व्हाट डू यू कॉल दोस ऑर्गेनाइजेशन हु टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव? ऑर्फनेजेस। वुड यू लाइक योर चाइल्ड टू गो टू एन ऑर्फनेज इन केस बोथ ऑफ यू पास अवे? ऐसा गार्डियन जो जज अपॉइंट करता है उसको कहते हैं सर्टिफाइड गार्डियन। और एक तीसरे टाइप का भी गार्डियन है जो लॉ ने अलाउ किया है इस सिचुएशन से उभरने, और उसको कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। हर एक पेरेंट को लॉ ने अधिकार दिया है कि अपने जीते जी अपने बच्चों का गार्डियन अपॉइंट कर दीजिए। एज पर लॉ यू आर लीगली गिवन पावर टू अपॉइंट अ गार्डियन ऑफ योर चाइल्ड व्हाइल यू आर अलाइव बाय क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड लेटर ऑफ गार्डियनशिप। अगर आपने ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाया और उसमें लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद इस व्यक्ति को मेरे बच्चे की कस्टडी दे देना, तो जज भी अब कुछ नहीं कर सकता, उसको यही देनी पड़ेगी। दैट्स योर राइट एज पर लॉ। ईच वन ऑफ अस who has minor children should create a letter of guardianship. For control of assets, there are two types of guardian: guardian of person, guardian of assets. आप इसी लेटर में गार्डियन ऑफ एसेट बना सकते हो, या आप एक माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट बना सकते हो, जो बेस्ट तरीका है इसे ओवरकम करने का। और सारा पैसा विल से ट्रस्ट में डालो, ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाओ, उसमें ऑब्लिगेशन और कंडीशंस डाल दो, पैसा जैसे यूज हो सके। दैट्स अ मोर ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग इट देन अपॉइंटिंग अ गार्डियन ऑफ एसेट्स, राइट? वी बी टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, थोड़ा बहुत हम बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में, राइट? बट द सेकंड डॉक्यूमेंट विच यू शुड बी ऑल अवेयर इज लेटर ऑफ गार्डियनशिप। क्योंकि बच्चों से प्रेशस आपके पास कोई चीज है ही नहीं, बच्चों को भी अनप्रोटेक्टेड छोड़ा हुआ है आज। यू हैव लेफ्ट योर चिल्ड्रन अनप्रोटेक्टेड टुडे। नाउ कम्स माय माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। डिसेबिलिटी कंसर्न। इफ यू बिकम इनकैपेसिटेटेड, सपोज आप पैरालिटिक हो जाते हो, मेंटली अनसाउंड हो जाते हो, ऐसी स्थिति में आपके बैंक अकाउंट जो सिंगली ऑपरेटेड है, आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो सिंगली ऑपरेटेड है, उनको कौन ऑपरेट कर? अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो इसका रेंट आपके बिहाफ पे कौन ले पाएगा? अगर इस रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करना है तो ये रिन्यूअल कौन कर पाएगा? इसके लिए आपने क्या किया? और इसके लिए आप क्या सिचुएशन समझ गए? यू आर इन कोमा, आपको डिमेंशिया हो गया, आपको पार्किंसन हो गया, इस टाइप की डिजीज हो गई। तो ऐसी स्थिति में इन चीजों को ऑपरेट कौन कर पाएगा? अब ये विल काम नहीं आएगी। विल इज अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, वो डेथ के बाद ही काम आती है। नॉमिनेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि नॉमिनी भी कब है? आफ्टर डेथ, नॉट वाइल यू आर अलाइव। तो इस स्थिति के लिए आपने क्या तैयारी करी और आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कहते हैं स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये एक स्पेशल टाइप की पावर ऑफ अटॉर्नी है जो तभी तभी एक्टिवेट होती है जब मैं फिनेंशियली इनकैपेसिटेटेड हो, और ये किसी को अधिकार देती है कि मेरे बिहाफ से ये सारे काम कर ले एज पर कंडीशन मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ मेरे बैंक अकाउंट में से हर महीने 1 लाख रुपए निकाल सकते हो तुम। तो मैक्सिमम अलाउड कितना है? 1 लाख। तो मैं दे रहा हूं किसी को अधिकार, पर कंडीशंस के साथ। आई एम स्टिल कंट्रोलिंग। ऑल ऑफ अस शुड क्रिएट अ स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी, बिकॉज इट्स अ बिगर रिस्क देन डाइंग। इफ यू डाई योर फैमिली सफर्स, इफ यू बिकम इनकैपेसिटेटेड बोथ यू एंड योर फैमिली सफर्स। मैंने ऐसे इंस्टेंस देखे हैं कि आदमी के पास बहुत सारा पैसा है पर वो ऐसी स्थिति में है लीगली ऑपरेट नहीं कर पा रहा, राइट? फिर कोर्ट में जाओ, 8-9 महीने लगाओ, फिर वो किसी को अपॉइंट करेगा कंजर्वेटर, उससे हर हफ्ते हिसाब लेगा कोर्ट। बहुत मुसीबत का काम है, वो चीजें इससे अवॉइड हो जाएंगी, राइट? चलिए अब मैं अपने अपने
आखिरी डॉक्यूमेंट पे आता हूँ जो इसके बारे में। इसके लिए भी मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, और आई एम अगेन सॉरी कि मैं ऐसी सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा जॉब ही कुछ ऐसा है। सिचुएशन क्या है? सपोज यू आर ऑन अ डेथ बेड, ब्रेन डेड, more than 15 days on a ventilator and doctors keep you artificially alive। आप डेथ बेड पे हैं, 15 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे, और डॉक्टर्स आपको आर्टिफिशियली अलाइव रखते हैं। क्यों? क्या रीजन है? दे आर लीगली ऑब्लाइज टू डू इट, उनका लीगल ऑब्लिगेशन है कि ये करें। सेकंड, सम ऑफ देम माइट थिंक वी आर मेकिंग मनी ऑन हिज बॉडी। तो व्हाट्स द रिस्क? फर्स्ट रिस्क इज यू आर इन लॉट ऑफ पेन। आपने किसी किसी पेशेंट को डेथ बेड पे देखा है? कहाँ कहाँ ट्यूब डालते हैं वो, देख के दर्द होता है। सोचो जिसके साथ हो रहा है उसका क्या हाल होगा। सेकेंड रिस्क क्या है? योर वेल्थ वुड स्लोली गो टू अ डॉक्टर, नर्सिंग होम और हॉस्पिटल। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दैट इज मोर देन 2.5-3 लाख रुपीज एटलीस्ट पर डे, राइट? 20-25-30 दिन रहेगा फैमिली का, फॉर गिविंग यू पेन। 30-1 करोड़ रुपए किस पे लगेगा तुम्हें पेन में रखने के लिए? कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यस। In March 2019, Supreme Court in a landmark judgment said, right to die with dignity is the fundamental right of every Indian। इज्जत की मृत्यु हर एक हिंदुस्तानी का संवैधानिक अधिकार है। एंड यू कैन एनफोर्स दिस राइट ऑफ योर्स बाय क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड लिविंग विल और एडवांस्ड हेल्थ केयर पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट बना दिया तो डॉक्टर को इस डॉक्यूमेंट के अनुसार जब आपकी वो स्टेज आ गई तो मशीन बंद करनी पड़ गई। आपको 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे कम चांस सरवाइव करने का है, स्विच ऑफ द वेंटिलेटर एंड कीप गिविंग मी पेन किलर्स। आई रिफ्यूज टू रॉट ऑन अ बेड। मुझे बिस्तर पर पड़कर सड़ना मंजूर नहीं है। ये एक लीगली एनफोर्सेबल राइट है इंडिया में, और इस लिविंग विल को बनाकर आप इसे एनफोर्स कर सकते हैं। इस लिविंग विल को बनाकर आप इसे एनफोर्स कर सकते हैं, राइट? तो मैंने आपको आपको 4 डॉक्यूमेंट बताए: विल, लेटर ऑफ गार्डियनशिप, फिनेंशियल ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी और लिविंग विल। अगर आप ये 4 डॉक्यूमेंट बनाते हो तो शायद इनहेरिटेंस छोड़ के जाओगे अपने बच्चों के लिए, मेस नहीं, राइट? दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत उस पे बहुत बहुत छोटे में मैं आपसे ट्रस्ट की बात करना चाहता हूँ। ट्रस्ट इज अ बिग टॉपिक, मे बी अक्षत वुड हैव अ सेपरेट सेशन फॉर इट, बट आई गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ ऑफ द ट्रस्ट। इन एवरी वे अ प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट इज बेटर सॉल्यूशन देन अ विल, क्योंकि विल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। विल की पहली प्रॉब्लम क्या है? आप में से मैं, मेरी वाइफ पे जाएगी, उसके बाद बच्चों पे जाएगी। विल की प्रॉब्लम क्या है? जब वो आपकी वाइफ पे चली गई उसके बाद विल ऑपरेट करना बंद कर देगी, उसके बाद वाइफ की विल चलेगी, आपकी विल इस पे ऑपरेट नहीं होगी, राइट? ट्रस्ट में ऐसा नहीं। ट्रस्ट में आप कह सकते हो पहले वाइफ पे और उसके बाद बच्चों पे। तो यू कैन हैव कंडीशन ओवर अ कंडीशन इन अ ट्रस्ट। दूसरा फायदा जो ट्रस्ट का है जो विल में नहीं है, अगर आप अपने एसेट्स को अपनी डेथ के बाद कंट्रोल करना चाहते हो तो ट्रस्ट इज द वे, नॉट द विल। आप में से कुछ लोगों के कंसर्न है, क्या मेरे बच्चे इस एज में अगर उनको ये वेल्थ मिल गई उसको संभाल पाएंगे? क्या वो उसे ठीक से खर्च कर पाएंगे? क्या क्या वो इसको प्रिजर्व कर पाएंगे? क्या उनके क्रेडिटर्स इस रिस्क विल को, इस पैसे को ना नहीं ले जाएंगे? क्या उनके स्पाउसेस इस पैसे को ना ले जाएंगे? उन सब का आंसर प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट में मैं ये सब चीजें कंट्रोल और प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ट्रस्ट में आप अपनी वेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हो ओवर जनरेशंस। आप कह सकते हो इसका खाली इनकम यूज होगी, कॉर्पस नहीं यूज होगा, या हर जनरेशन 15% कॉर्पस और इंटरेस्ट यूज करेगा, बाकी मैं ट्रस्ट के लिए कर सकता हूँ, विल में नहीं कर सकता मैं। इफ यू वांट कंट्रोल आफ्टर यू फॉर मल्टीपल generations, trust is the way to go। And we are talking about private family trust, we are not talking about charitable trust। यहाँ फर्क समझिए, ये चैरिटी वाली ट्रस्ट नहीं है, ये प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। ट्रस्ट इज डिफरेंट देन एचयूएफ। ट्रस्ट इज मच मच बेटर देन एचयूएफ एज अ सिस्टम ऑफ वेल्थ ट्रांसफर। एचयूएफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एचयूएफ से तो अच्छा है विल बना दो। सो अक्षर, इट्स ओवर टू यू। Sir, thank you so much. It was a beautiful session, beautiful session. I think I've heard you so many times, but again, I've learned many new things in this session again. So thank you so much for your time. It is amazing. We will definitely have a separate session on trust if all of you want. Sir, if it'll be possible for you, we would love to have you for trust as well. Sure, I So love to do that। okay, sir. Actually, it's better that they communicate with you and Sir, thank you so much. I really appreciate. I know you have a very busy schedule.
I met sir, I think in January first week at the AFM event that was in Mumbai, and it was lovely to meet you then. Thank you so much for your time. And sir, if you are, we would love to have you again for a session on trust. I think that is also a very important session. So we will coordinate a time with you, and we will look forward to have you again, sir.